اب میں چاہتا ہوں کہ جو احباب سیرت النبی کورس پڑھے ہیں ہماری خدمت میں ان کی طرف سے کچھ تاثرات پیش ہو جائیں کہ انہیں یہ سیرت النبی کے کورس کے ذریعے سے کیا پیدا ہوا. تو میں تاثرات پیش کرنے کے لیے سب سے پہلے میں عالی جناب رفیق احمد صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے تاثرات پیش فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کورس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے چن کر 3 مہینے مسلسل محنت کر میں سیکھنے کا موقع اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا. اس کے لیے میں اللہ کا کتنا بھی شکریہ ادا کروں اتنا بھی کم ہے. تو سب سے پہلے میں سیرت النبی کے کورس کے کمپلیشن مطلب ختم کے بعد میں سیرت النبی کو 3 حصوں میں دیکھتا ہوں. سب سے پہلے میں سیرت النبی میں کیا سیکھا, میری زندگی میں سیرت النبی کی کیا اہمیت ہے, اور دوسری چیز سیرت النبی سے میری ذاتی طور پہ مجھے کیا فائدہ ہوا, اور تیسری چیز میں سیرت النبی مجھے کیسا لگا اور کیسا تھا مسجد قباء میں سیرت النبی سیکھنے کا. اگر سب سے پہلے میں یہ کہوں, اکثر ایسا ہوتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی چھوٹی چھوٹی واقعات یہ جمعہ میں یا دینی مجلس میں یا جماعتوں میں چھوٹی چھوٹی واقعات ہمیں سکھاتے ہیں اور سننے کا موقع ملتا ہے, لیکن اس 3 مہینے کے کورس میں مسلسل سال در سال پوری باتیں اس میں آنے کی وجہ سے ابھی میرے اس سیرت النبی اور دین کے بارے میں میرا نالج اتنا اضافہ ہوا ہے اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. محترم بھائیوں بزرگوں دوستوں, میں اس سیرت النبی کے ذریعے سے میں یہ جانا کہ زمانہ جہالت میں جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کیا حالات تھے عرب میں, اور ان کا خاندان کیا ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے, کون سے شہر میں پیدا ہوئے, ان کا بچپنا کیسا تھا, ان کی پاکیزہ جوانی کیسی تھی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے بعد کیا کیا حالات پیش آئے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے نبی کون سے جنگوں میں شریک رہے, اور ہمارے نبی کیسے دین کو پھیلائے. جیسے کہ ایک اہم بات ہے کہ دعوت و تبلیغ ہمارے نبی نے کیسے کیا, جیسے کہ اسلام کو پھیلانے کے لیے ہمارے نبی نے کیسے اس دین کو اس لوگوں تک پہنچایا, اور اس کے بعد کیسے یہ مجھے میری ذات میں فائدہ ہوا. سب سے پہلے میرے ایمان میں اضافہ ہوا. تو یہ سیرت النبی کے کورس کی وجہ سے میرے ایمان میں اضافہ ہوا اور میرے نالج میں اضافہ ہوا. اس کے ساتھ ساتھ میرے دل میں نبی کے بارے میں کئی گنا عزت اور ریسپیکٹ بڑھ گیا. محترم بھائیوں بزرگوں دوستوں, آخر میں اگر میں بولوں تو سیرت النبی کورس مسجد قباء میں ایک دم پروفیشنل تھا. ایسا لگا جیسے کہ میں کوئی کلاس روم میں بیٹھا ہوں اور کوئی انسٹیٹیوٹ میں سیکھ رہا ہوں. اتنا پروفیشنل تھا. ماشاءاللہ ہمارے مولانا صدام قاسمی صاحب کی محنت اور ان کے فکر کی وجہ سے, اور مولانا نے اتنی فکر کرتے تھے تاکہ ہمیں یہ پورا کورس 3 مہینے کا کورس آسانی سے سمجھ میں آ جائے. اس کے لیے میں ان کو قابل تعریف اور شبکامنائیں دیتا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. سب سے امپورٹنٹ یہاں پہ پریزنٹیشن کا تھا, اور پڑھاتے حالاتوں کے بارے میں, جنگوں کے واقعات کے بارے میں نقشوں کے ذریعے سے سکھانا, اور یہ میرے لیے واقعی ایک الگ ایکسپیرینس تھا. اس کے لیے میں ہمارے مولانا صدام قاسمی صاحب کو اور مسجد قباء کی کمیٹی کو تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. اس کے بعد میں عالی جناب منصور احمد صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے تاثرات کا اظہار پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کا احسان, اللہ کرم کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سیرت النبی کورس میں داخلہ نصیب فرمایا, اور میں اس کا اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. جی, میرا نام منصور احمد ہے. میں ایک ٹیلی کام انڈسٹری میں کام کرتا ہوں, اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سیرت النبی کورس میں داخلہ ہونے کی توفیق عطا فرمائی, اور ساتھ ہی ساتھ میں امام صاحب اور جو کورس کا سارا ڈیزائن کیوریکلم بنائے
उनका भी शुक्र अदा करता हूँ। वाकई में अल्हम्दुलिल्लाह कोर्स बड़े स्ट्रक्चर के साथ बनाया गया था कि कोर्स के अंदर सारे जैसे IT के भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं और बुजुर्गानी दिन भी हैं, लेकिन कोर्स का मॉड्यूल और उसका जो स्ट्रक्चर इमाम साहब बनाए थे अल्हम्दुलिल्लाह तो सबके जहन में आसानी से समझ में ऐसा लाया गया। तो माशाल्लाह इसके लिए मैं इमाम साहब का और कोर्स का जो करिकुलम बनाए उन सबका मैं तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इस कोर्स से बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरतीबात, जो उनका पूरा लाइफ के बारे में पूरी तरतीब सीखने का मौका मिला अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरा फ़ायदा ये हुआ कि सीरत नबी का जो भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ इमाम साहब से जो सीखा और समझ में आया, उसके अंदर उसको जाकर घर के अंदर अपने वालिदैन के साथ और अपने बीवी बच्चों के साथ तज़किरा करने की वजह से घर का माहौल भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बदल रहा है। ये 3 महीनों के अंदर 3 महीनों में इससे पहले बहुत सारे बयानात और बहुत सारे तज़किरे होते थे अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये सीरत की बरकत से और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में जो सीखकर घर के अंदर जो मुज़ाकिरा तज़किरा हुआ, उसके वजह से घर के अंदर नमाज़ों में, तिलावत में, अमाल में इजाफा हुआ। बच्चों का भी शौक़ बढ़ा। बच्चे इंतज़ार करते थे कि यहाँ सैटरडे का क्लास ख़त्म हो ताकि सैटरडे संडे का जो भी सिखाया वो वीकडेज़ के अंदर मंडे टू फ्राइडे उनके सामने बैठकर डिस्कशन भी, तज़किरा भी हो जाए। तो वो बहुत एक्साइटेड होते थे बच्चे कि यहाँ सीरत सीख कर घर में आकर उसका तज़किरा। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़ायदा हुआ। मैं आप सब भाइयों से भी गुजारिश करता हूँ कि आप भी वक्त निकालें सीरत को सीखने के लिए, समझने के लिए। अल्लाह ताला हम सबको कहने से ज़्यादा अमल की तौफीक। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम सादिक बादशाह है, मैं कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह लाख लाख शुक्रिया है अल्लाह की मुझे ये कोर्स सीखने के लिए एक मौका मिला। मैं तो MSc करता हूँ, PhD किया, मैं तो बहुत से कोर्सेज करता हूँ, ऑलमोस्ट 5 से 6 कोर्सेज करता हूँ। बट मेरे ज़िंदगी में ऐसा मौका नहीं मिला ताकि मैं पूरी ज़िंदगी हुजूर की सीख सकूँ। बट एक्चुअल माफ करना कभी इंग्लिश आ जाता है। मैं जब एक कोर्स में जमने के लिए मौलाना बोले, अल्हम्दुलिल्लाह 3 महीने का कोर्स सैटरडे संडे 2 दिन का था, और हमारा टाइमिंग था 1 ही आवर। बट 8:30 बजे हम जब क्लास स्टार्ट करते कब 10:30 बजे हो जाते हमें पता ही नहीं चलता, बिकॉज उसमें इतनी इंटरेस्टिंग सिचुएशन थी। जो मौलाना ने जो स्लाइड्स रेडी करे थे एक सेशन का, हम तो बहुत से कॉलेज में देखा है, बहुत से प्रेजेंटेशन किया है, बैठ कर हूँ। बट जितने भी सेशंस मौलाना करता ही हर एक सेशन का डिवाइड करते थे एक 8 से 10 स्लाइड्स में। हर एक स्लाइड में आप चाहे तो देखिए वो स्लाइड्स इतने खूबसूरत हैं। हर एक स्लाइड में जो जिसकी ज़रूरत रहती उसका नक्शा रहेगा, वो भी क्या पुराने ज़माने का नक्शा मिलना बहुत मुश्किल है। मौलाना ने उसको कलेक्ट करके उसके बारे में इतना क्लियर पिक्चर रहता है। हर एक स्लाइड में कितने टॉपिक्स हैं, 5 टॉपिक्स, उसके बाद क्या आएगा, उसके साथ साथ मौलाना ने उसके बारे में ये प्लेस में और भी आप मैं थोड़ा भूल गया बट इसको ऐड करो। इट मीन्स हमारा सीखने का तरीका ऐसा था, आप हर एक स्लाइड का बहुत फ़ायदा होता था। क्यों? तो अभी तक जिस इतने साल से हर एक जुमा में, हर एक मजलिस में हुजूर की सीरत का छोटे छोटे वाक़या हमें मिलते थे। बट जो भी ये सेशन था पूरी ज़िंदगी का, हुजूर के पैदाइश के पहले से हुजूर के 63 इयर्स जो भी लाइफ है उसमें जो भी इंसिडेंट्स है हर एक का भी एक स्लाइड रहता था, हर एक का एक प्रेजेंटेशन इतना खूबसूरत, एक काबिल तारीफ है। जितना टाइम उन्होंने इसके लिए जो स्पेंड किया उतना आसान नहीं था। क्यों? तो मुझे पता है 1 घंटा क्लास बैठने के लिए, बच्चों को सिखाने के लिए मुझे 5 घंटे की जरूरत रहती। जैसा मौलाना 1 घंटे के स्लाइड्स के लिए मेरा ख्याल से 1 हफ्ता वो कोशिश करते थे। क्यों? तो उनको प्रिपेयर करना है, स्लाइड्स कोई दूसरा बना रहा है, उसके हिसाब से क्लास दूसरे दिन चलेगी। इट मीन्स 5 दिन की मेहनत जस्ट 1 घंटा या 1.5 घंटे में खत्म होती थी। ओके, इट मीन्स मैं एक दो एग्जाम्पल्स दे दूँ। जितने भी स्लाइड्स थे
अभी तक हम हुजूर के सीरत के बारे में सुनते थे, बट इस बार हम जो भी देख रहे हैं प्रेजेंटेशन के साथ देखने से जितने भी हमारे जंगे ओहद, जंगे खंदक, जितने भी प्रेजेंटेशन हैं, जंगे खंदक का मैं सुनकर था पर कभी भी उसका प्रेजेंटेशन नहीं देखा था। उससे एक मुझे क्लियर पिक्चर मिला, मेरे लाइफ में मैं कभी भी नहीं भूल सकता हूँ। इसलिए मदीना मुनव्वरा में जो एरिया है, दो साइड में पहाड़ है, एक साइड खजूर का बाग है, एक ही एरिया था। उसको कवर करने से जो जंग के लिए आएंगे वो अटैक नहीं कर सकते। ये प्रेजेंटेशन आपको देखने से इतना खूबसूरत लगेगा, मेरे लाइफ में कभी भी वो मंदिर में कभी भी भूल नहीं सकता। इट मीन्स ऐसे बहुत है, मैं तो एक छोटा एक ही एग्जाम्पल दे रहा हूँ। 24 सेशन के आप लेंगे तो 24x10 इतने ज़्यादा मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। इट मीन्स हर एक स्लाइड पे हर एक मौके का बहुत क्लियर पिक्चर, वो भी क्या सिर्फ 24 सेशन में। अगर यही कोर्स आप 6 महीने या साल रखेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। मेरे ख्याल से इधर शायद हमारे 24 या 27 मंदिरों के इमाम और मेंबर्स बहुत से लोग हैं। मेरी गुजारिश है, जो भी मेहनत मौलाना करते हैं वो स्लाइड्स का अगर हम हर एक मस्जिद में यूज़ करें, उसका फ़ायदा हो गया तो बहुत फ़ायदा होगा। तो फिर हम रेडी करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी इट इज़ रेडीमेड। आपके पास रेडीमेड मटेरियल है, जस्ट आपको यूज़ करना है। ओके, इंशाल्लाह। अगर मैं तो बहुत टाइम ले लिया, ओके, अगर कोई गलतियाँ हैं तो माफ़ करो। अस्सलाम वालेकुम। इसके बाद मैं अली जनाब जाफर सादिक साहब को दावत देता हूँ कि तशरीफ़ लाएँ, 2-4 मिनट में मुख्तसर अंदाज में अपने तासुरात का इज़हार करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम जाफर सादिक, मैं ताजिर हूँ। माशाअल्लाह मैं BSc पढ़ता हूँ, लेकिन ताजिर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये सीरतुन नबी, लाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या फिर ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि वो जर्नी ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे हज़रत सद्दाम कासिम साहब की मेहनत से थोड़े वक्त में 24 सेशन में, यानी 3 महीने के कोर्स में, मतलब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 63 साल 63 ईयर्स की ज़िंदगी, मतलब बहुत ऐसा आसान तरीके से हमने समझा है प्रेजेंटेशन के ज़रिए कि हमें भूल नहीं सकते। मतलब वो स्लाइड से उनका प्रेजेंटेशन का तरीका माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत था। ये सिर्फ बोलने से मतलब नहीं समझ में आता। ये हजरत एक बात आखिर में बोले, ये चस्का है, अब ये चस्का लगा दे हम इंशाअल्लाह। आइंदा हमें ये चस्का ऐसा लगाएंगे कि इंशाअल्लाह अगले एडवांस कोर्स शुरू करने वाले हैं, मतलब हम लोग उसका बेसब्री से इंतज़ार है। सीरतुन नबी ये 3 महीने का कोर्स जो है, हमारी ज़िंदगी में क्या फ़ायदा होता बोले तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 63 साल की ज़िंदगी में कहाँ से उनका लेने शुरू हुआ, कौन से कबीले से आए, और उनका बचपना, उनके जवानी और हिजरत के मतलब हिजरत के मौके पर क्या कौन से वाक़यात हुए, सब प्रेजेंटेशन के जरिए हमारे दिल में दिमाग में बैठ गई। इंशाअल्लाह ताला आइंदा आने वाले दिनों में जो एडवांस कोर्स का है उसका बेसब्री से इंतज़ार है। बस इतना कहना चाहता हूँ। इसके बाद में अली जनाब इब्राहिम साहब तशरीफ़ लाएँ और मुख्तसर 2-4 मिनट के अंदर अंदर अपने तासुरात का इज़हार करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम बुजुर्ग दोस्तों, सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं जो है
पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं अनपढ़ हूँ। दूसरा एक कैटेगरी में ड्राइवर हूँ। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह के नबी की सीरत से हमारी जो ज़िंदगी है दुनिया की और आखिरत की कामयाबी जो एक रास्ता है। और मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह के नबी की जो सीरत हमें 3 महीने से सुने और दिन रात में चलते फिरते उठते बैठते अल्लाह के नबी की याद आती है। अल्लाह के नबी जो हिजरत के बाद के 13 साल की जो तकलीफ हमारी उम्मत आखिरी क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए जो अल्लाह के नबी तकलीफ उठाए, जिस उम्मत के वास्ते जो है जो अल्लाह से जो है अपने उम्मत के लिए दुआएं करें। हमें जो है हमारी ज़िंदगी में हमारा हर अमल, उठना बैठना, खाना पीना, रहन सहन, जो भी काम करेंगे अल्लाह के नबी की याद आए, उनकी सुन्नतें याद आए। मेरा दिल चाहता है कि हर मुसलमान के दिलो दिमाग में, जज्बात में नबी की सीरत दाखिल हो जाए। इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ और फ़ायदा में जो फ़ायदा हुआ पूरी तरतीब से 3 महीने में पूरी सीरत को हमें सुनने का मौका मिला। हमारे मौलाना को जज़ाए खैर दे अल्लाह उनकी मेहनत से, और जो दरूद शरीफ हमारे मौलाना 500 मरतबा पढ़ने के लिए बोले, और जो पहले पढ़ते थे सरसरी पढ़ते थे, अभी जो अल्लाह के नबी की तकलीफ को याद करके जो तकलीफ दरूद शरीफ पढ़ते हैं तो अलग मज़ा आता है। और अल्लाह के नबी की जो तकलीफ जो है दिन रात में जो है परेशान करती है, गमज़दा करती है, और हमारा ईमान जो है अल्लाह ताला जो है ईमान में तरक्की अता फरमाए, और जो हमारी ज़िंदगी अल्लाह के नबी की सुन्नत तरीके में गुजर जाए। ये अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ कि हमारी ज़िंदगी, तमाम मुसलमानों की ज़िंदगी अल्लाह के नबी की सुन्नत में गुजर जाएगी तो अल्लाह के नबी बहुत खुश होंगे। इससे बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ। मेरी गुजारिश है कि इस सीरत को और आगे ता क़यामत तक जो है इस सिलसिले को जारी रखे। अल्लाह सबको हिदायत अता फरमाए, हमारे मौलाना को जज़ाए खैर अता फरमाए। उनके ज़रिए से हम जो है हमारी जो है ज़िंदगी गुजारने का एक रास्ता अल्लाह के नबी की सीरत से मिला और बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ। इतना ही कहता हूँ, जज़ाए खैर अता। ज़बान मुहतरम, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस सीरतुन नबी कोर्स में तकरीबन 70 अफराद शरीक रहे। 70 अफराद, उनमें से तकरीबन 55 अफराद ऐसे थे जो आखिर तक हमारे साथ शामिल थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोर्स के ख़त्म कर इन सब दोस्तों ने सीरतुन नबी का एग्ज़ाम भी दिया है। अब तक ये माशाअल्लाह अलग अलग फील्ड के एग्ज़ाम लिखते थे, कोई टेक्नोलॉजी का, बायोलॉजी का, अलग अलग, कोई मैथ्स का एग्ज़ाम लिख रहा है। इनके लिए ये बहुत बड़ी सआदत थी कि अब अल्हम्दुलिल्लाह ये सीरतुन नबी के स्टूडेंट्स हैं, सीरतुन नबी के तालिब इल्म हैं, और सीरतुन नबी का एग्ज़ाम इन्होंने दिया है। और उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला इस इम्तिहान को ज़रिया बनाकर आखिरत के इम्तिहान में अल्लाह तबारक व तआला कामयाबी अता कर दे।